Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 9th computer science, and in this I am teaching you spreadsheet tool. What is I am teaching you today? Spreadsheet tool. Okay. In last video we are discussed what is quick access toolbar, what is ribbon display option. We know that quick access toolbar, it is known as quick access toolbar. Okay, and this is the some frequently used option. This is the some frequently used option. Okay, this is the collection of some frequently used option, that is known as a ribbon display option. That is known as ribbon display option. Okay, we know that what is ribbon, that is called ribbon, and on the top of ribbon tabs are present. On the top of ribbon tabs are present: file, home, insert, page layout, formula, data, review, view, office. These are the called tabs. These are the called tabs. And on the bottom of the ribbon, group are present: font, alignment, number, style, cells, editing. These are the group. And between group and tab, some command are present. Some command are present. Some command are present. Okay, that is known as command. Okay, command or option. Okay. Below the ribbon, formula bar is present. Below the ribbon, formula bar is present, and this is named as name bar. This is named as name bar. It contains name of the active cell. It contains name of the active cell. First character is known as column. First character is known as column. A is column and one is row. Okay, A is column and one is row. Okay, we are discuss about it in our last video. Today we discuss some more about MS Excel. Today we discuss some more about MS Excel. In this, today we discuss entering data in a worksheet. Okay, entering data in worksheet. First we need to know what is worksheet. First we need to know what is worksheet, and one thing is also we need to know what is work area. Okay, what is work area? Worksheet and work area. Worksheet is a collection of Worksheet is a collection of sheet, that is known as sheet, and that is the work area. That is the work area where we perform some logical or other operation, that is called area. Okay, it is called area, and that whole is called sheet. That whole is called sheet. And workbook is a collection of worksheet. Worksheet is a collection of sheet. Okay, it is called workbook or worksheet. It is a collection of worksheet. ये क्या होता है? Collection of worksheet होता है, or you can say that collection of sheet. Okay, in MX Excel, the data is stored in rectangular box. In MX Excel, the data is stored in rectangular box. Each rectangular box in worksheet is called cell. क्या कहलाता है हमारा? Each rectangular box in the worksheet is called cell. Cell is the intersection of row and column. Cell is the intersection of row and column. Perform below mentioned step. Perform below mention step to enter data in worksheet. Okay, first step, select a cell. First step is select a cell, and second step is enter the content into selected cell using the keyboard. Okay, using the keyboard we enter the content into selected cell. The content appear in the cell and in the formula bar. ठीक ना, जो कंटेंट होगा वो दोनों जगह अपीयर होगा, सेल में भी और फॉर्मूला बार में भी. चलिए मैं करके दिखाता हूँ.
जैसे मैंने क्या कह लिया, इस सेल को मैंने सेलेक्ट किया, एट दिस टाइम दैट सेल इज नोन एज एक्टिव सेल, ये इस समय ये सेल क्या कहलाता है, हमारा एक्टिव सेल। एंड अदर देन दैट ऑल सेल, अदर देन दैट सेल, इस सेल के अलावा सभी ऑल सेल क्या कहलाते हैं, हमारे इनएक्टिव सेल, क्या कहलाते हैं, इनएक्टिव सेल। व्हेन वी आर एंटर इन दिस एनी कंटेंट, जैसे मान लीजिए मैंने आलोक एंटर किया, तो अब यहाँ पे देखिए आलोक इस सेल में भी डिस्प्ले होगा और फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले होगा, यानी जो चीज़ हम एक्टिव सेल में हम एंटर करेंगे वो फॉर्मूला बार में भी डिस्प्ले होगा। और नेम बॉक्स क्या करेगा, इस एक्टिव सेल के नेम को डिस्प्ले करेगा, किसको डिस्प्ले करेगा, एक्टिव सेल के नेम को। पहला जो होता है कैरेक्टर वो क्या करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, देखिए जी नंबर कॉलम की बात हो रही है, हम लोग जी नंबर कॉलम में काम कर रहे हैं। और दूसरा जो होता है नंबर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो का, देखिए 7 नंबर रो की बात, 7 नंबर रो डिस्प्ले हो रहा है, तो हम लोग 7 नंबर रो में ही हैं, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे कैसे हम सेल में कुछ डेटा एंटर करते हैं, ठीक ना। अभी मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि फॉर्मूला कैसे एंटर करते हैं, ठीक ना। मोर नंबर होता है, जैसे 10 डिजिट से ज़्यादा नंबर होते हैं तो उसको कैसे एंटर करते हैं, सारी चीज़ें मैं एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल आप लोग अपने बुक के हिसाब से एक एक करके आगे बढ़िए ताकि हम आपको समझने में ईजी हो, ठीक ना, आसानी हो। तो चलिए हम अपने आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं सेविंग अ वर्कबुक, ठीक ना, सेविंग अ वर्कबुक। ईच वर्कबुक दैट यू क्रिएट इज टेम्पररी, सभी वर्कबुक जो आप क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, टेम्पररी होता है। अनलेस यू सेव इट, जब तक कि आप इसे सेव नहीं करते, ठीक ना। Each workbook that you create is temporary unless you save it, okay, you save it as a file with a name and unique location. Perform below step to save a workbook for the first time। हमें फॉलोइंग स्टेप परफॉर्म करना होगा जब हम किसी वर्कबुक को पहली बार स्टोर करेंगे अपने सिस्टम में, सिस्टम मतलब अपने कंप्यूटर में। पहला स्टेप क्या है, क्लिक ऑन द फाइल टैब, पहले हम किस पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब पे। वी नो दैट टैब इज प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द रिबन, टैब कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टॉप ऑफ द रिबन। सेकेंड स्टेप, क्लिक ऑन द सेव ऑप्शन, किस पे हम क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे। सेव ऑप्शन, दिस सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल अपेयर। In the left navigation pane, select a location to save the file or leave the default location. Fourth step, in the name box type the name of the workbook and click on the save option, किस पे क्लिक करेंगे, save option पे। the workbook will be सेव इन दी डॉक्यूमेंट फोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट, और जो हमारे पास वर्कबुक होगा वो सेव हो जाएगा हमारे डॉक्यूमेंट फोल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। तो ये देखिए पहली टाइम है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, नया एक्सेल वर्कशीट हमें खोलना होगा, वर्कबुक हमें क्या करना होगा, खोलना होगा। तो हम कैसे खोलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे और उसके बाद ये हमारा आ गया। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक नया वर्कबुक हमारे पास ओपन हो जाएगा। क्या ओपन होगा, एक नया वर्कबुक ओपन होगा। और देखिए ये बुक 1 नाम से ओपन हुआ, किस नाम से ओपन हुआ है, हमारा बुक 1 नाम से ओपन हुआ है। अब इसे मुझे सेव करना है तो हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले हम किस पे जाएंगे, फाइल टैब में जाएंगे और फाइल टैब से हम किस पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमसे लोकेशन पूछ रहा है। देखिए ब्राउज़र में ब्राउज़र से हम क्या करते हैं, लोकेशन हम डालते हैं कि हम सिस्टम में कहाँ इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो देखिए मैं 9th क्लास के फोल्डर में इसे क्या करना चाहता हूँ, स्टोर करना चाहता हूँ। तो इस पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक कर दूँगा। उसके बाद देखिए ये हमसे नेम पूछेगा, फाइल नेम। तो फाइल नेम बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 2 3 होता है, लेकिन हम इसे नेम देना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसको नेम देता हूँ डेमो सर, क्या नेम देता हूँ, डेमो सर नेम देता हूँ। उसके बाद सेव पे मैं क्लिक करूँगा, किस पे क्लिक करूँगा, सेव पे।
जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, अब देखिए ये डेमो सर नाम से क्या हो गई, ये हमारा डेमो सर नाम से क्या हो गया, सेव हो गया। ठीक, तो चलिए हम इसको हटा देते हैं, अब इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक, अब हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं और हमारा अगला टॉपिक है ओपनिंग ओपनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कबुक। क्या मैंने बोला, ओपनिंग एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कबुक। ओके, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वर्कबुक को हम कैसे ओपन करते हैं, हम ये देखते हैं। अ वर्कबुक इज ऑलवेज सेव एज फाइल, अ वर्कबुक इज ऑलवेज सेव एज फाइल। You know that a workbook is always saved as file. You can open the workbook later to view, modify or print it. Perform following mentioned step to open a workbook. First step, click on the file tab. First step is click on the file tab. Second step, then click on the open option. कहाँ पे हम क्लिक करेंगे, open option। ओपन ऑप्शन, दी ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। तो क्या अपीयर होगा, ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे पास अपीयर हो जाएगा। सेलेक्ट द फाइल दैट यू वांट टू ओपन, उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट करना है फाइल को जिसको आप क्या करना चाहते हो, ओपन करना चाहते हो। ठीक ना, क्लिक ऑन द ओपन बटन, the file that you have selected will open. Click on the open button, the file that you have selected will open. Okay, तो चलिए हम इनको इन चारों स्टेप को फॉलो करके देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जाना होगा फाइल टैब पे। कहाँ पे जाना होगा, फाइल टैब पे। उसके बाद हमें कहाँ जाना होगा, ओपन पे जाना होगा। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास देखिए ओपन डायलॉग बॉक्स हमारे पास ओपन हो गया। अब जिस फाइल को हमें ओपन करना है, जिस फाइल को हमें क्या करना है, ओपन करना है, अगर वो फाइल यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहीं पे हम क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम सिस्टम में हमारा कहीं प्रेजेंट है तो उस लोकेशन पे जाएंगे इसकी हेल्प से। तो मैं क्या चलता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर इनमें से कोई फाइल ओपन करना है तो डबल क्लिक कर देंगे, वो फाइल ओपन हो जाएगा। अगर हमें कोई फाइल लोकेशन से जाके सेलेक्ट करना है तो इस पर हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे मेरी एक फाइल सेव है। कहाँ पे फाइल मेरी सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है। डेस्कटॉप पे भी 9th क्लास में सेव है और यहाँ पे किस नेम से सेव है, डेमो सर के नाम से सेव है। तो मैं यह क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दूँगा, तो ये फाइल क्या हो जाएगी, मेरी ओपन हो जाएगी। देखिए डेमो सर नाम की फाइल क्या हो गई, हमारी ओपन हो गई। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक, चलिए हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। किस पे चलते हैं, हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं। और हमारा अगला टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग इसे देखिए, क्योंकि आप लोग कई बार देखते होंगे तो यहाँ पे जो सीट होती है वो सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से ही होती है। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको अपने हिसाब से नेम हम दे सकते हैं। ठीक ना, तो यही कहलाता है नेमिंग अ वर्कशीट। क्या कहलाता है, नेमिंग अ वर्कशीट। परफॉर्म फॉलोइंग मेंशन स्टेप टू रीनेम अ वर्कशीट। हमें फॉलोइंग मेंशन स्टेप परफॉर्म करना होगा एक वर्कशीट को रीनेम करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट उसका नेम क्या होता है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 होता है। ठीक ना, अब इसको मुझे क्या करना है, रीनेम करना है। तो फर्स्ट क्या करेंगे, राइट क्लिक ऑन दी वर्कशीट टैब। कहाँ पे हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे वर्कशीट टैब पे यू वांट टू रीनेम, जिसको आप रीनेम करना चाहते हैं। दी वर्कशीट मेन्यू विल अपेयर। क्या अपेयर होगा, वर्कशीट मेन्यू हमारे पास अपेयर हो जाएगा। क्लिक ऑन दी रीनेम ऑप्शन, हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, रीनेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, द टेक्स्ट विल हाईलाइट बाई ब्लैक बॉक्स, टाइप द न्यू नेम ऑफ द वर्कशीट हेयर। और वहाँ पे हम क्या करेंगे, न्यू नेम टाइप करेंगे वर्कशीट का और क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टैब द वर्कशीट इज रीनेम। तो देखिए इसको इमेज मैंने 3 लगाया है, इसके इमेज के थ्रू देखिए। पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारा क्या होगा, वर्कशीट का नाम क्या होगा, सीट 1, सीट 2, सीट 3। अब मुझे जैसे मान लीजिए इस सीट 1 को रीनेम करना है, तो मैं इस सीट 1 पे ले आके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही राइट क्लिक करूँगा इस तरह से ड्रॉप डाउन मेनू हमारे पास अपेयर होगा
और ऊपर से तीसरा ऑप्शन ही जो है हमारा क्या है, रीनेम का। जैसे ही हम रीनेम करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स हमारे पास, एक हमारे पास रीनेम के लिए बॉक्स ओपन होगा, ब्लैक बॉक्स, और उसमें जो नेम हम देना चाहेंगे वो नेम हम टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया टुडे, तो अब इसका नाम सीट 1 ना हो के अब क्या हो गया, टुडे। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो मैंने क्या किया, इस सीट का नेम मुझे चेंज करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, अपने कर्सर को यहाँ पे लाऊंगा और इस पे मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही राइट क्लिक किया मैंने, आप देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन मेनू हमारे पास अपेयर हो गया। अब इनमें से मुझे कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मुझे रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैं रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे देखिए ब्लैक हो गया, ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। और यहाँ पे हम जो भी नाम देंगे, जैसे मैंने क्या दे दिया, टुडे दे दिया, मैंने क्या दे दिया, टुडे दे दिया, ठीक ना। अब इस सीट का नाम क्या हो गया, टुडे हो गया। अब जब मैं अपने कर्सर को सीट में कहीं भी, यहाँ के अलावा कहीं भी जब मैं क्लिक करूँगा, तो इस फाइल का नाम देखिए चेंज होके क्या हो गया है, टुडे हो गया है। क्या हो गया, इस फाइल का नाम चेंज होके टुडे हो गया है, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो गई होंगी। आप लोग इसे अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे मल्टीपल टाइम करके देखिए ताकि आपको भूले ना। और रटने की कोशिश तो बिल्कुल मत कीजिएगा, रटने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश करिए, दिमाग पे जोर डालिए, कॉन्शियस माइंड को अपने जगाइए, ठीक ना, ताकि आप लोगों की सोचने का जो एरिया है, लिमिटेशन है, वो एक्सपेंड हो, ठीक। और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सोच सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।